Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Mahwash Ajaz. You're watching me on YouTube and you're listening to me on Spotify. हमेशा की तरह पाकिस्तानी ड्रामों के रिव्यूज के साथ मैं और सदफ हैदर हाजिर हैं. सदफ, अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum. How are you, Mavish? I'm very good, Sadaf. How are you? How was your week? Hectic. And eventful. I think it was a very eventful week for Pakistanis across the world, and of course, Pakistanis living in Pakistan. So don't Hmm. think, guys, कि हमने actually आप ही लोग हैं जो front line पे थे और जिन्होंने इतना कुछ face किया है. So glad that India and Pakistan have come to a ceasefire, and glad that Pakistan is, proven always, as always, taking the high road, doing the right thing, and standing by all the right principles. So very proud of Pakistan being on the right side of history. Sort of our coming to our drama chat this week. Let's start off with our favorite, Parwarish. I think that Parwarish is such a good show, and I'm hoping to catch the writer hopefully someday on our show, and we'll try to bring her because हमें सदफ कितना राइटर्स से बात करने में ज्यादा मजा आता है. आई थिंक मतलब एक्टर्स तो चलो हाँ इंटरेस्टिंग होते हैं, but not all actors are interesting, but I think all writers are very interesting people. I may be biased when I'm saying this. I love discussing their um, thought processes or their influences. I love talking to writers because you're talking to the person जिन्होंने idea को germinate किया है. Not just Hmm. क्योंकि look, it's sometimes quite random Hmm. how a drama turns out. Yeah. कुछ बेचारे writer ने लिखा होता है, and when you see the framework that they set out, फिर आपको समझ आती है अच्छा यहाँ से इधर राइट टर्न होगी थी, उधर से लेफ्ट टर्न होगी थी. But the original maqsad of the writing and the spirit, the essence of the writing comes out only with the person who originated the idea. So, हाँ, और बेचारा it हमारा was- राइटर बहुत काफी हद तक हेल्पलेस होता है. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, ओवरऑल राइटर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते जितना उनको होना चाहिए, बिकॉज आयरॉनिकली कहानी उन्हीं उन्हीं ने बनाई होती है, उन्हीं की पैदावार होती है. सो एनीवे, परवरिश जो है एक बहुत अच्छा ड्रामा है. गाइस, अगर आप लोग नहीं देख रहे तो प्लीज इसको देखें, और जो देख रहे हैं वो जल्दी से आ जाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं. बड़े लंबे लंबे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए अबाउट परवरिश. तो आई थिंक मतलब परवरिश की जो सबसे अच्छी बात मुझे जो ये लगती है, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, कि एक मॉडर्न रिलेशनशिप्स के ऊपर जो टेक है परवरिश की, और जिस तरह मॉडर्न आजकल के जमाने के बच्चों को जिस तरह वो उनका लैंग्वेज है, जो डिक्शन है, जो सिंटैक्स है, वो सब उसने उसको अच्छे से कैप्चर किया है. एंड आई थिंक परवरिश की सक्सेस ये भी प्रूव करती है कि वो जो गैप जिसके बारे में हम बहुत अरसे से बात कर रहे थे, भाई इनके लिए बनाओ, इनके लिए ड्रामे होने चाहिए. My only main concern is with the lighting. I think everything is too dark. I think that it could have done with a little bit more better grading होती तो बहुत अच्छा लगता. But overall, I think characters इतने strong हैं. जो उस लड़की का जो main track है जिसमें वो upset है about her marriage and why she doesn't want to get married, and how she keeps getting gaslighted by her mother, by the family, and by her own kind of um, हम कहते हैं कि भाई क्यों नहीं बोला, मना क्यों नहीं कर दिया, मना कर देती ना. लेकिन देखें ये होता है जब लड़कियां मना करने की कोशिश करती हैं तो भी उनके साथ क्या होता है. आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ पॉइंट इज बीइंग कॉन्स्टेंटली मेड इन द पास्ट कपल ऑफ एपिसोड्स, और अगले एपिसोड के टीजर में भी हमने देखा है कि फाइनली वो दूसरे लड़के को भी पता चल जाएगा कि शी इज एंगेज्ड. एंड वो जो मंगेतर साहब हैं वो अपना असली रंग दिखा देंगे, विच आई एम नॉट अ फैन ऑफ. आई थिंक उसको दिखाते हैं कि भाई नहीं, तू स्नेक था, तुझे स्नेक होने की वजह से ही छोड़ा है मैंने, ये दिखाना चाहिए था. व्हाट्स योर टेक सदफ, बताएं. Well, my take is this. I like the way they show the different reactions. हम्म. And this shows that Kiran Siddiqui as a writer is on the ball. हम्म. आपने देखा है कि जो वली है, he is horrified in the हम्म. next week कि भाई तुमने कहा था तुम सिंगल हो, हाँ. because that's capital sin, cheating in, but contrary to public opinion in the East, cheating, two timing someone, that is considered a cardinal sin. Even in the Particularly West, yeah, what you're trying to in say, the yeah. West, it's like, whereas कोई देसी लड़का होता तो वो समझता हाँ तुम्हारी कोई मजबूरी है, इससे मंगनी तोड़ दो. वो Yeah. शायद इतना भी शोर ना मचाता जैसे That's a वली good point. horrified, right? So Hmm. I really liked his reaction, and I think I want to appreciate the actors as well. Hmm. माया तो अच्छा काम कर रही है, जो लड़की आयना आसिफ है, Hmm. who is, way again I'm going to say, way too Too young. young, agreed. Too young, too young. She looks 15. I don't think she's 18, 19, or whatever it is that I think she's too young.
I think she's young, and I don't really have a problem with young women doing older roles or older women doing younger roles. I really don't have a problem with that. This is not ageism. This is problematic. This Yeah, is I don't care if it's ageism at all. You know, I am anti-woke as it is. hmm, So, जो आपको नजर आ रहा है, देखो, the product should look good. तो she looks hmm, too young to be in hmm, position. और romance hmm, आ रही है and all of this, but I'll come to that in a minute. Let me stick to the drama. So, hmm. I say कि वली is doing ये जो लड़का समर अब्बास उसका नाम है, समर जाफरी Summer Jamari, sorry. जी And he's doing a fantastic job. Or hmm, uska jo body language hai and the way he talks, or all that kind of thing, it's working. But hmm, I think it's a very Pakistani view of hmm. how an American returned person would look like. Okay, Whereas an American returned person might not be that exact way. okay. Sometimes they're quiet, but it's a stereotype. Hmm. लेकिन काम चल रहा है. But what I agree with you so much about that girl's mother. वो मैं कब से कह रही हूँ कि वो औरत उसकी दुश्मन है. उन्हें hmm. से ही जैसे आंखें ऐसे झपकती रहती है and then अच्छा तुम अब ये कर लो. And I'm not sure why she's doing it. It's like she's totally disconnected from her daughter's feelings. I don't उसको think कोई so. Yeah, I'm इंटरेस्ट नहीं sorry. आता. Sorry, I'm cutting you off. Just answering your question, like, why do you think she's doing it? I think it is because she's a typical woman who doesn't care about her child's future and she only cares about बस सही है ठीक है हो जाए. Yeah, so that's my theory on What this. You do can let you me know mean what you by think. that? What typical woman doesn't care about her child's future? I think most typical women don't care about children's future when they're stuck in that kind of an atmosphere where it's about survival. I mean, Saman Ansari is not, I wouldn't say she's the norm. I think that there are so many women who get stuck in that setup and look at the man she's married to. So they're terrible people. She's that नहीं, समन अंसारी की तो केस सेपरेट है ना. शी hmm, इज बीन ट्रेंड जब से वो आई है कि तुमने ये काम करना है, तुमने वो करना है. शी इज दैट hmm, ट्रेडिशनल बहू. एंड आई hmm, थिंक सिद्दीकी इज यूजिंग अ लॉट ऑफ ट्रोप्स टू क्वेश्चन थिंग्स. कि mm-hmm. क्यों हाथ से सारी रोटियां बनानी है व्हेन देयर इज अ रोटी मेकर अवेलेबल. Yeah, yeah, yeah. why do we हमने I mean, but there's an answer to that as well कि अगर आप बाहर के मसाले too much use करेंगे, it's Hmm. not good for blood pressure, it's not good for Yeah, this. and processed food is also not good. So yeah, there's that argument too. there is Yeah. there is an argument there, लेकिन it's on the labor of other people. So anyway, it's a lack of communication. They can say these things, Hmm. but what I'm saying, but I think that woman is rather selfish. उसको ये है मेरा घर, and I'm talking about Maya's mother, Hmm. right? Hmm. मेरा घर चलता रहे, मेरी लाइफ डिस्टर्ब ना हो. मैंने भी गुजारा कर लिया था. शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द बॉय व्हाट Hmm. ही इज लाइक, जो Hmm. होने वाला दामाद है. शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द होने वाला ससुराल. उसको Hmm. ये ही जिम्मेवारी खत्म हो बस. Hmm. फिर Hmm. मैं एक गिल्ली की तरह बैठ के बिस्तरे के ऊपर ना चाय पिया करूं. तो no, maybe you're right, because I've noticed with a lot of women in Pakistan, dream यही है कि कोई आए और मेरी खिदमत करे. That's Hmm. it. Yeah. That's Yeah. main life. और मैं वो ना पंजाबी में कहते हैं ना मंजी दे उत्ते बह के चाह पीवा. Hmm. That's it. Yeah. एंड ये देखे ना सिर्फ एक जो मैं टिपिकल औरत की बात कर रही हूँ ना कि हमारे यहाँ अच्छी अच्छी औरतें भी टिपिकल औरतें होती हैं. मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि टिपिकल औरतें बुरी होती हैं. मेरे कहने का मकसद हम्म. ये कि जो टिपिकल बुरी औरत होती है ये जो आई हम्म. थिंक वो हैरी पॉटर का कोट है. गॉड आई कोट हैरी पॉटर सो मच. बट हैरी पॉटर का है या पता नहीं किसका है कि समटाइम्स हाँ इट्स हैरी पॉटर दैट इग्नोरेंस इज वर्स देन हेट्रेड. Outright blind hatred. Like, if I'm invested enough to hate someone, it means I'm actually putting in the effort. But a lot of people in our world and in families and mothers, and it's also so heartbreaking because जब माएं इस तरह हो जाती हैं जैसे उन्होंने आयना आसिफ के कैरेक्टर की जो माँ है माया की माँ को जो दिखाया है. जब माएं ऐसी हो जाती हैं तो बेटियों की पूरी पूरी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं. एंड इसमें एक और पॉइंट भी है सदफ कि जिस तरह के मर्द से उसकी अपनी शादी हुई है वही आपकी वाली बात कि मैंने भी तो गुजारा कर लिया इस तरह के इंसान से तो तुम भी I, कर लो. I I think there is a level of growth that happens. Some people can grow in adversity. या ये भी है. है ना, बंद होते जाते हैं. हम्म. तो इस औरत का दिमाग बिल्कुल बंद है. एंड शी इज अ फैबुलस कैरेक्टर. दिस इज, आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द एक्ट्रेस. कि हम्म.
आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग है, उन्होंने बहुत अच्छा, मैं उनकी आई आई लव द वे द शॉट्स हैव बीन टेकन, हाँ, मेकअप, एंड शी इज दिस एग्जॉस्टेड मदर कि बस हम्म अब करो, एंड हम्म शी इज पुशिंग दैट गर्ल बिकॉज यू गेट द फीलिंग इन द back of my mind at least कि this is how she was pushed to marry this man that पॉसिबल। she's married to now. She's हम्म probably been told कि बस अब शुक्र करो, and to a certain extent I can see her perspective, but एक इंसान के दिल में रहम भी होता है अपनी औलाद के लिए, and this is something our religion teaches as well कि आप अपनी औलाद पे थोड़ा सा रहम भी करो। अच्छा, वन ये लास्ट पॉइंट बिफोर वी मूव ऑन टू द अदर ड्रामा। साहब, आपको नहीं लगता कि जब आपने ये रहम की बात की है तो कभी कभी हमारी ऐसी माएँ जो होती हैं इनको लगता है रहम ये है कि हम इसको समझाएं कि ये शादी कर ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कोई अब्यूसिव मैरिज में होता है, जब हमने जफा के केस में देखा कि जफा के केस में जो उनकी या दस्तक में हम देख रहे हैं कि दस्तक में जो उनकी right. फुफ्फो हैं, वेल मीनिंग प्रॉब्लमेटिक थिंग्स आर आई थिंक व्हाट इज बीइंग That क्वेश्चनड। who is not well meaning, she's a वो nasty piece of वो work, तो the शी इज, बट देखे ना, गार्ब गार्ब तो वेल मीनिंग होने का ही है ना। मतलब ये देखे ना, जो हमारे इस तरह के लोग हमारी दुनिया, हमारे आसपास होते हैं, वो इविल उस सोच के नहीं होते। और इविल किसी इंसान को इविल ये सोच के वो नहीं होता कि मैं इविल हूँ और मैं इविल करूंगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनको, जो पूरी मैकिनेशन के साथ बैठ के सोचते हैं। Again, Voldemort quoting Harry Potter is that, he says something. He said, there's no good or bad, there's only power and those who are too weak to seek it. So, sometimes I think that people, when women in these setups, in these patriarchal, severely patriarchal setups, or even चले forget patriarchy, हम एक जनरल बात कर लेते हैं कि people who take the wrong choice, और हम उनको कहते हैं कि यार ये मेरे से ये मशवरा कैसे दे सकता है मुझे। लेकिन हम कभी कभी ग्रीड में, कभी कभी हम समझते हैं कि हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम इसके लिए अच्छा कर रहे हैं कि ये शादी हो जाएगी तो अच्छी हो जाएगी, जबकि वो इतनी दफा बोल चुकी है कि मैंने नहीं करनी है शादी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, इंसान की फितरत है कि वी टेक व्हाट इज कन्वीनियंट टू अस। हम्म। तो देखो, वो जो, एंड इट्स अ गुड कंपैरिजन दैट हम्म। यू मेक, वो दस्तक वाली माँ, हाँ। वो पुप्पो। भाई बहन, भाई सॉरी, बहन। भाई हम्म। का हम्म। रिलेशनशिप, एंड देन द मदर, बट हम्म। द मदर हैज सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ थ्रू हर ब्रदर, या। सो इतनी इंटरनलाइज नहीं उसने किया हुआ, हम्म। सो थोड़ी सी उसके दिल में अपनी बेटी के लिए भी रहम होता है, एंड शी हम्म। हैज द पावर टू स्ट्रगल, बट समटाइम्स वुमेन डू दैट एनीवे, बट गोइंग बैक टू जो परवरिश। Parwarish की mother है, she's so typical, and this is what mothers do because they lack self-confidence. They really do, हम्म। and it's like it's your choice. You see, you can only blame the father or someone else or the puppo in जो मशवरे दे रही थी father को सारी उम्र, so much, या। right? या। ठीक है, it you take the advice that you find convenient. वो जो हम्म। साहब थे दस्तक में, जो किरण के फादर हैं, he is taking his evil sister's advice because it's convenient to him, not because it's the right advice or it's good advice. So हम्म। I think Kiran's father is the villain. I don't think of the Puppu as that much as villain. वो गलत मशवरे दे रही है, अब उनको होश आई है कि oh, I better not listen to what she's saying, जब वो एक्सट्रीम पे चली जाती है कि तुम दूसरी और शादी बीवी कर, जो घर छोड़ के चली yeah, जाती है, बिल्कुल बर्बाद हो right, जाता है बेचारा। हाँ। अच्छा, वैसे then वही बात है ना कि कुछ लोगों को तब भी अकल नहीं आती, शुक्र है कि उसको आ गई। yeah, I was kind of shocked. मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी ये जितना बगैरत आदमी है ये यही करेगा, अस्तगफुरुल्लाह। right? So, but going back to Parvish, I really, really like it, and you know what, I love the way the relationships are building. कि वो लड़की इतनी तंग, क्योंकि अगर कोई और ड्रामा होता तो वो उस लड़के में इतनी बुराइयां नहीं है। वो जो वलीद है, एक तो हम्म। वलीद फ्रॉम अमेरिका, एंड हाँ। देन पाकिस्तानी गाय का नाम है वलीद, हाँ, वो एंड जो मंगेतर है। या, हम्म। एंड वो होना चाहिए था कि उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती, एंड दिस इज आई लव दिस सीरियल बिकॉज वो कह रही है नो, नॉट नेसेसरीली, और हम्म। दैट गाय इज अ रेड फ्लैग जो हम्म। है वेटिंग टू हैपन, क्योंकि या। वो एक
बात उससे करता, मैं तो तुम्हारे साथ तो तोहफे तहाइफ ला रहा है। बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑफ दीज रिलेशनशिप्स, ये जो अरेंज्ड मैरिज वाले होते हैं, तोहफे तहाइफ तो बहुत लाते दैट्स हैं। सच अ गुड पॉइंट। ये जो अरेंज मैरिज में जो ये धोखे देना बड़ा आसान हो जाता है तोहफे शोफे लेके, एंड यू हैव टू कमेंड द राइटर्स एंड लेट्स कमेंड आवरसेल्व्स आल्सो, जो कि हम इस तरह के पॉइंट्स निकाल के ऑडियंस को भी बताते हैं कि दिस इज व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट। एंड सर, जब हमने कर्जे जान के ऊपर भी बात की थी, तो हमने जैसे हम्म, कर्जे जान के ऊपर ये चीज बार बार हम कहते थे अपने रिव्यूज में भी, एंड आई want to say this, it's a bit of a segue to what we are discussing, but I definitely want to say this to our audiences, जो हमारी लिमिटेड ही ऑडियंस है। लेकिन गाइस, रिव्यू करने का मतलब ये होता है कि आप राइटर के जो डीपर मैसेजेस हैं उनके बारे में आपको पकड़ना, आपको आना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि मुझे ये इसकी शक्ल नहीं पसंद, मुझे ये एक्टर नहीं पसंद, मुझे ये कैरेक्टर नहीं पसंद, मेरे हिसाब से तो ये नहीं ठीक। आप कौन हैं? आप जस्टिफाई करें ना, अव्वल तो सबसे पहली बात है। और दूसरी बड़ी बात ये कि राइटर बेचारा इतनी मेहनत से उसने कहानी तरतीब दे के कोई एक पूरी एक चीज बताने, एक सब टेक्स्ट बताने की कोशिश कर रहा है, तो आप सिर्फ बैठ के रेंट करना है आपका काम? आप रिव्यू दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जैसे कर्जे जान में जैसे हमने बात की, हम जफा के ऊपर जब बात कर रहे थे, या ऐश के जुनून में जो हम फादर सन की बॉन्डिंग की बात हो रही है, अब दस्तक में हम ये बात देख रहे हैं, टैबूज की बात हो रही है, और इसमें भी कुछ हद तक जनरेशनल की कर्सेस की भी बात हो रही है दस्तक के ऊपर। लेकिन मैं रिव्यू के हवाले से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब सब रिव्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, जिन सबका यूट्यूब चैनल है। लेकिन एज वन ऑफ द ओजी पीपल जो कि करते रहे हैं और जो बहुत मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत में कर रहे हैं ये सारे रिव्यूज, प्लीज कहानी की थोड़ी सी तो तह में जाएं, थोड़ा सा तो उसको डिग करें, डीप करें। मतलब इतनी सतही बातें हैं, अल्लाह माफ करे। तो मैं ये कह रही हूँ सदफ कि ऑल परवरिश के आई अंदर ये जो आपने ऑल बात कही है ना, आई कैमरा एंगल्स, ऑल आई हियर इज कैमरा एंगल्स और फलान एक्सप्रेशन यूं और था। चार टर्म्स सीख लिए हैं बस, वही उसी पे बातें होती हैं। तो सदफ, ये जो आपने बात की ना अबाउट द रेड फ्लैग्स इन दीज अरेंज मैरिजेस, आई थिंक दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट आई थिंक दैट द राइटर वाज ट्राइंग टू मेक। And because as young people, and because I think it's like talking to young people, it's kind of telling women, that please watch out. Maybe you may think that because he's so sweet and he's like bringing you gifts and he's listening to you, you may think, अरे ये तो, इसमें क्या पड़ा, ये माँ की बात सुन लो। अब कोई लड़की अगर ये ड्रामा देखते हुए अपने आप को क्वेश्चन कर रही है कि ये माया क्यों नहीं मान रही है लड़के की बात, नाउ सो आई थिंक कि रिव्यू का जो काम होता है वो ये काम होता है कि हम जब रिव्यू करें किसी ड्रामे का, तो हम उस ड्रामे की सबटेक्स्ट लेके ऑडियंस को एक कोहेसिव मैसेज बताएं कि देखें, अगर आपने ये चीज मिस कर दी तो देखें कि मिस ना करें, एक्चुअली में राइटर ये बात कर रहा है। लेकिन खैर, अब रिव्यूज कहीं और चलेंगे। सो इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यूड लाइक टू ऐड अबाउट No, परवरिश? I really love that. Have you noticed that the generational challenges, and this is how a good drama is written. उन्होंने तरीके से किरण सिद्दीकी उनका नाम है, जी। so she's brought in the whole family, क्योंकि अब वो बहुओं का एक मैच बन रहा है कि वो जो बड़ी बहू अमेरिका से आई है, शी इज काइंड ऑफ रिबेलियस, हम्म। एंड वो जो पालक, उनका नाम मैं भूल, पारस, आई एम नॉट श्योर, या। समन अंसारी का ये जो कैरेक्टर है, जी जी जी। वो इतना ट्रेंड है बेचारी डरने से। एंड व्हाट इज लवली इज दैट her husband is actually supporting her. हम्म। He's not arguing with her, वो mama's boy नहीं है, and that's a nice change as well, don't you think? क्योंकि इट इज। वो है वो वाला अम्मा अच्छा अब्बा, हम्म। it's quite possible to respect your parents and not disrespect your wife. It is possible, लेकिन it takes a man to do it, right? A आई real थिंक man. मेजोरिटी यही होता है, मेजोरिटी जो मर्द हैं या जो मेजोरिटी जॉइंट फैमिली के सिस्टम्स हैं वो ऐसे ही होते हैं कि बेचारी औरतें घिस रही होती हैं, मियाँ जो हैं वो बेचारे देर ट्राइंग टू कीप द पीस। एंड इसमें अगेन ये बात जरूरी आ जाती है कि जो माँ बाप के जो बड़ों का किरदार है ना, लेकिन हमारा सोसाइटी सदा बड़ों पे बहुत मुनहसिर है, बहुत डिपेंड करता है हमारा सिस्टम घर में कैसा चल रहा है, बड़े कैसे हैं, बुजुर्ग कैसे Out हैं। of love, it's not just a financial No, dependent. no, 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 I not mean, financial. I'm not talking about yeah, financial. I'm talking about like the pure the love है. norms you set ना, the हम्म, norms you set। and जैसे वो दादी बेचारी नियत की अच्छी है, देखो मैं तुम्हारे लिए ग्रेनोला बार बनाई है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया, लेकिन रोटी नहीं बनेगी इस मशीन में। भाई क्यों नहीं बनेगी? लेकिन आप एक और चीज नोट करें, अब हम इसमें घुसते ही चले जा रहे हैं, लेकिन वी हैव अदर ड्रामास टू डिस्कस। oh, but it's such a good इट्स drama, सच है अ ना? गुड ड्रामा, इट्स सच अ गुड ड्रामा। आई थिंक सतफ देखे ना हम, इट्स नेवर अबाउट द थिंग, it's always about something else behind the thing. Like it's never about the roti maker. It's never about the mangni or the anguthi, it's always something behind it. I think that woman, Savira Nadeem का जो character whose name I've forgotten very nicely, उनका जो character है वो
इतना चैलेंजिंग रिलेशनशिप है सबके लिए. सो इट्स नॉट लाइक अगर आप मीठे होके मांगेंगी या अच्छे से मांगेंगी तो वो मना कर देंगे, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू काइंड ऑफ कोप विद थिंग्स. द दादी शमीम हिलाली के कैरेक्टर जो है, लेकिन अब वो कहती नहीं जी क्यों नहीं होगा. तो अब चीज जब अड़ जाती है ना तो फिर बड़े भी अड़ जाते हैं. तो इट्स नॉट अबाउट द रोटी मेकर, बट इट्स अबाउट द द क्लैश ऑफ टाइटन्स. But the writer has kept, and the actors have kept the nuance in every character. कि सवेरा नदीम और समन अंसारी के कैरेक्टर्स में कलश होती है, बट शी इज अपसेट, बट वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन गए कि अब तो मैं इसको मजा चखाऊंगी, स्टार या वो प्लस. right. And this is what I'm appreciating, words like, hey, you should have, अच्छा चलो छोड़े, मुझे पता है तुम्हारा, right? And that's how normal Devrani Jethani act. They don't hate each other necessarily unless there's something very abnormal going on, It's right? not like रसोड़े में कौन था, which is Yeah. like what happens, which is what I think Pakistani dramas decided कि चले अब हम ये वाली चीज करते. Thank God it's dying its death. This Mm. कल मेरी साड़ी पे वो गिरा था, उसमें रसोड़े में कौन था kind of I stupid think thing. that's also a kind of a superstition that I think that is common in certain cultures, but हम्म. it's not common in our culture. कि हम्म. अब के ऊपर ये दाग लगा था, अब वो अच्छा, चीज गिरी ये थी, है अब कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता. well, I don't know because I've stopped watching Indian dramas. But when हम्म. I did watch them, there was a level of superstition in them कि अब ये दूध गिरा है तो इसका ये अच्छा मतलब है. हाँ, वो कैंची अब चली वो है तो लड़ाई हो जाएगी. राइट, अब अचार हाँ. भी मैंने चखा है तो अब वो ये हो जाएगा. अच्छा वो. तो yeah, when you are bound by these superstitions, right? And they are superstitions, not necessarily part of anyone's religion. They are just Yeah. that people make up. Things that I people mean, make up. we Okay. have them in Pakistan. सफर के महीने के इतने superstitions हैं that have nothing to do with religion. Yeah, not at all. Yeah, Yeah. yeah. So So anyway, I think that Parwarish is such a great drama. I think that it deserves the love that it's getting. So last happy. word. Hmm. Last word, please, guys. I love the way that they brought up how Wali got into medical school. Hmm. That was brilliant because I think it's going to destroy whatever relationship that Wali has been building up, and the beautiful way that he and his grandfather kind of like accepted this, and Wali is Hmm. actually moving forward, right? Yeah. 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 For a Desi kid, they might buckle under, but a westernized child not going to accept, his ego is not going to accept that. No, I think he's a So, good guy. I think he's a mm, good kid. It's just that, and again, this is the beauty of the drama. And it's a story, any story which shows gray characters accurately or the gray of human nature accurately is a great story. And I think that they're doing that in Parvarish so well. So mm. hats off to the entire team of Parvarish. I still don't like it that you guys copied Parenthood, so please don't do that again. But yeah, good show, good show. देन सदफ, बिकॉज हम बात इतनी कर रहे थे, वैसे तो बहरूपिया के ऊपर बात करनी है, लेकिन दस्तक के ऊपर छोटी सी बात कर लेते हैं. आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा कुछ है दस्तक के बारे में बात करने के, बिकॉज हमें वही स्टोरी का वही फिलहाल लूप तो वही चल रहा है. लेकिन दस्तक की जो तरीका है ना, द वे दैट इट्स टोल्ड, इट्स सो ब्रिलियंट. आई थिंक बिकॉज इट पिक्स अपार्ट ईच कॉन्फ्लिक्ट इन अ वेरी मेच्योर एंड काइंड ऑफ सेंसिबल मैनर. जैसे आपने कहा ना कि कोई ये नहीं होता कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी और अब मैं इसको यूं कर दूंगी, मैं इसके दूध No में melodrama, no हाँ message. जलाब जलाब मिला दूंगी इसके दूध में. दोस काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स दैट हैपन इन सर्टेन ड्रामास. तो आई थिंक वो इट स्टीयर्स clear of that completely. It's mature, it's intelligent. It does not compromise on the female lead's dignity at any point in time. Also, what I love about Dastak. Thank you, Sarvat Nazir. Thank you, Sarvat Nazir. Thank you, ARY and Six Sigma, for this, because it's so important and so high. What a legend she is, like as an actress. Yes. She's so brilliant. What I Mm, also love is the boy, is that you need to show in times of conflict, how do good men behave and how do mm. bad men behave. Like, मैं बहुत अरसे से सदफ सैफ को ना थोड़ा क्लीन चिट ही दे रही थी कि देखो यार, कसूर तो है थोड़ा सा कमीना सा तो है, लेकिन कसूर नहीं है, मोहब्बत थी उसे He's किसी a और से. cruel, evil young man. हाँ मतलब अब तो एस्टेब्लिश हो गया है कि भाई ये एक नहीं नहीं, काफी. वो उसी दिन हो गया था when he hurt her, या या right? या 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 That- अच्छा नहीं, वो वो अच्छा, उसमें मैं थोड़ा सा ये है कि मैं कहती हूँ कि उसने ये जो बिहेवियर किया
जो उसको पूरा तरीके से लोगों ने, बाकी लोगों ने काइंड ऑफ कवर करने की कोशिश की, नहीं वो ऐसा नहीं है, नहीं वो नहीं है, उसको मान जाएगा, उसको ये करो। बिल्कुल ही ऐसा है। हाँ वो बिल्कुल ही ऐसा है, यही मैं कहने वाली थी कि आपने थोड़ी देर के लिए ऑडियंस को भी हम थोड़े से गैस लाइट हो गए कि अच्छा क्या मतलब है क्या, लेकिन उनका नहीं भाई, ये ऐसा ही है, देखो एंड में ये निकलेगा ये। सो आई लाइक दैट दे टुक हिम टू दैट पॉइंट। एंड वो जो वो वाला पॉइंट है ना जिसमें वो उसको नहीं बताती कि सैफ मेरे बेटे से, he wants to get the son and whatever, and then when the Muiz finds out and Muiz says you didn't tell me this, the little conversation they have on the table, that was so good, and like इतना सुकून मिला उसे देख के। मतलब एयर वाइस मार्शल औरंगजेब को देख के जैसे सुकून मिल रहा था ना, वैसे वो सीन देख के सुकून मिल रहा था कि भाई कितने देखो अच्छा पूकी हैं उनका दोनों। घर, माय मैसेज टू एवरीवन, उनका घर आबाद होने दें। यार वैसे इतना सीरियस बेचारे लेने की, कितने परेशान है। नहीं इतना सीरियस राइट। क्यों ले रहे हैं, मतलब ठीक है यार, सबको ही पता है कि हाँ बस लोग शुगल ही कर रहे हैं, जैसे बाकी मीम्स बन रहे हैं वैसे उनके ऊपर भी बनने हैं, मतलब इतना भी सीरियसली मुझे नहीं लगता। नहीं ना, बीवियां सीरियस ले जाते हैं। अच्छा मैं तो बड़ी फ्लैटर हूँ, हाँ आई वुड बी लिटिल लाइक कौन है ये, सामने आओ जरा, बट पीठ पीछे जो ये करता रहा वो आई डोंट। देखी थी, अंगूठी आई थी। हाँ अंगूठी आई थी फौरन, फौरन आ गई थी। और भाई अच्छा मैं, मुझे तो डीजीएसपी बहुत बहुत पसंद है, मुझे बहुत डिग्निफाइड लगते हैं वो, और मुझे लगता है कि उन्होंने भी बहुत अच्छी, और बड़े सेंस ऑफ ह्यूमर भी है उनका बड़ा। हाँ। देयर वाज अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एज वेल, वो कोई उन्होंने डिंगे नहीं मारी, एंड दे वर नॉट एक्टिंग लाइक हम्म। ह्यूमन बीइंग्स, यू नाराज नो। पप्पा, नाराज पप्पा बिल्कुल नहीं थे वो। और मुझे सबसे अच्छी बात जो उनका कोट लगा था ना, वो जो मुझे लगता है कि हम सबके लिए, सुन सबके लिए, मतलब मैं नॉट इन पाकिस्तान या इंडिया या किसी के लिए भी, मैं कहती हूँ ये ओवरऑल दुनिया भर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि टू कंसिडर a nuclear war in for between two countries is stupidity, sheer stupidity. So ये सबको समझने की जरूरत है कि दिस इज नॉट, ये रिटेलिएशन और एस्केलेशन वाली बातें ना बस बस कर दें, बस कर दें। एनीवे कमिंग बैक टू दस्तक, वो जो सुकून मिल रहा था ना उन दोनों का कॉन्वर्जेशन देख के कि कितने अच्छे से उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया है। That's the words, the magic words, you just said them. The success of any relationship is not about the good times. Everybody enjoys the good times. It's conflict resolution. So yes. That is the beauty of Dastak. What would you like to add about Dastak? Is there anything that you feel कि Okay. अरे यार I think this is something that they got right or wrong, Number whatever. one thing is, I wish they hadn't made the father into a gangster. I said that last week. They didn't need to. Yeah, people have enough troubles blending families as it is. Hmm. Now, I think someone is going to have to explain to Saf Hmm. and to Moise what a father is, because you can't deny that Saf is his biological father. Okay, so Saf is the biological father, and Moise is the practical father. I'm Hmm. not sure what the term is. लेकिन देखो, Moise अभी मिला है उस बच्चे से. Hmm. The lecture he gave, वो थोड़ा सा ना, it was ringing a little hollow, right? Hmm. एक तो सालों से पाल रहा है, तो मैं मान जाती. Hmm. So what he should have said, ठीक है आपका biological son है, but you've never been there for him. So I Hmm. found kind of those dialogues a little bit hollow, right? Okay. And एकदम से कहना. And I think the real solution is, and I think they need to come to that solution, rather than denying each other's presence, is to accept each other's presence. जैसे Americans करते हैं West में, right? Hmm. That you are allowed to send your son to someone else's, to his father's house. He gets to Hmm. him. बच्चे के लिए psychologically it's much better to know the truth, rather than ये जो एक हम लोग, you cannot create a fiction. For how long can you Hmm. create fiction? And Hmm. I think that will, this is what I'm hoping. I have high hopes of Sarwat Nazir, that she will not just throw Saf in the trash, though he deserves it. And I can totally understand that Kiran sees this man as incredibly toxic. He's a dangerous man. Uh, Hmm. but in the end, he is the biological father. And at some point, that child is going to find out. Better he finds out now कि ये मेरा नाम है. As they say in the Quran, this is your name, right? Hmm. Your child. So थोड़ा सा मुझे है. लेकिन I can understand Kiran and Moise's point of view. This man is completely unreliable. He's Hmm. very toxic. अभी इस early age में बच्चे को बता दिया, पता नहीं ये तो अगवा कर लेगा. I don't know. He's a crazy guy and he's not very kind. So, मुझे आपकी वाली वो वाली जो पॉइंट है ना कि बता दो, एक तो मुझे है कि बच्चा छोटा है, अभी काफी छोटा है। एक तो मुझे ये है कि अभी आई डोंट थिंक कि उसको yeah. समझ भी आएगी कि इतने I छोटे think बच्चे that, को। but that children don't learn. I mean,
two cases in front of my eyes. Bacha tried to commit suicide at the age of हाय। 18 when he found out he was adopted. 18-year-old. नहीं, I, 7-8 पे कहते हैं ना, 7-8-9 तक yeah. बता दें वो तो मुझे लगता है, एक तो मुझे ये है कि वो छोटा है कैरेक्टर, बच्चे का जो कैरेक्टर है। दूसरा मुझे ये लगता है सदफ कि जो सैफ है ना, Hmm. और कभी कभी वाई इट्स नॉट अबाउट द वेस्ट और द ईस्ट है, जो भी कभी कभी होता है कि यू Hmm. डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद योर एक्स, यू टेल द चिल्ड्रन दैट यस दिस इज नॉट योर बायोलॉजिकल डैड, दिस इज द डैड दैट योर मदर लेटर Right. फाउंड इन लाइफ है, जो भी। लेकिन sometimes you don't want to do anything with an ex which is so terrible, so toxic, which has That was so dangerous. They're so dangerous, in fact. dangerous, like almost psychopathic, right? So I think कि उस केस में जो किरण के केस में जो मसला है वो ये है कि वो she doesn't want anything, because I think she's a very sensible girl, and she's, Yes. you know, and she's not, it's not about for her, it's not like, oh no, I don't want to deal with my ex, I don't want to tell her. No, I think that she's very sensible, but because that she's so hurt, and because he did hurt her, and he hurt her multiple The times in many guy ways. is torturing her. देखो ना, Uff, he's तौबा। torturing her बजाय से कि वो एक सेंसिबल तरीके से कहे, देखो किरण, आई एम ऑल्सो द फादर, आई अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई डिड, Yeah, यू नो, exactly. यू कुड कम टू हर। देखो अक्लमंद लोग यही करते हैं। यू Hmm. कुड कम, देखो जो भी तुम्हारे मेरे बीच था वो तो खत्म हो गया, लेकिन आई एम स्टिल हिज फादर, आई वुड लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ, Hmm. लेट्स मीट। लेकिन नहीं, वो जो सैफ इतना जालिम है, आप खुद सोचे कि एक झूठा बच्चे, भी, झूठा भी है, हाँ, जालिम झूठा मैनिपुलेटिव झूठा। एटलीस्ट, वो मैनिपुलेट उसे कर रहा है, उसे थ्रेटन कर रहा है, और बच्चे को अगवा करने की थ्रेट्स देखो ना, ये सेल्फियां ले रहा है। सो हिज मेन इंटरेस्ट वंस अगेन, बड़ा खुदकर से, इज नॉट द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, इट्स हिज। हम्म। मेरी क्या मर्जी है, वो डे मेरी वन क्या से मर्जी है। मेरी क्या मर्जी है ना। एंड वही चीज है उसने, जो मोमिना इकबाल का जो कैरेक्टर है, वो उसको भी तो यही कहता है कि मैं किसी और का बच्चा नहीं पालूंगा, बच्चा तो मेरा होगा। अजीब ऑब्सेशन है भाई तेरा, तूने शादी दूसरी औरत से ही की है ना, कोई अपने किड से की है, वो भी तो किसी और की औलाद है। नहीं, पहले ऑब्सेशन नहीं था। ही इज वन ऑफ दोज पीपल जो एक ना, एक आइडिया पे फिक्स होके ना, तो सडनली ही नथिंग एल्स, वेयर इज, हम्म। ही वाज फाइन ऑल दोज इयर्स विदाउट द चाइल्ड। सो हम्म। मेरे ख्याल से ही नीड्स साइकोलॉजिकल हेल्प, ओ फॉर राइट। श्योर। ओ फॉर या, श्योर, एंड आई थिंक एंड दैट इज आई, ऑल्सो। गो अहेड, गो अहेड। No, no, I'm just saying it's just male entitlement. मेरा बेटा, and society also gives you that या, that kind of thing ना, कि मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। राइट। तो that। Society does, but I'm going to give again, Sarvat Nazir, thank you so much for giving us a divorced woman with dignity rather than वो hysterical हो रही है. Notice how Kiran deals with the, gossip, aunties, everybody, but ऐसे ठंडे ठंडे, क्योंकि she knows she's right. तो हम्म। शी डजंट हैव टू प्रूव टू एनीबॉडी। और फरियाल को वो ब्लेम कैसे, वो बड़े प्यार से, जो मैंने और आपने फ्यू एपिसोड्स डाउन द रोड कहा था, शी सेज टू मोइज, देखो इट्स हिज पेरेंट्स फॉल्ट्स, आई डोंट इवन ब्लेम सैफ, आई या। डोंट ब्लेम वो मोमिना इकबाल का कैरेक्टर ईदर। सो हाँ। shows you what a mature sensible woman she is. She's not हम्म। vindictive, No, she's not at all. scared because this guy is a psychopath. I think she's one of the best female characters we've seen. Hmm. And by best, I don't mean कि कोई negative character best नहीं हो सकता. I mean that as a role model or as somebody you look up to, सोहाय ने जिस तरह उसको प्ले किया है, जिस तरह सरवत ने उसको लिखा है, जिस तरह वो पूरा कैरेक्टर क्राफ्ट हुआ हुआ है, वो हमारी, जैसे मैं बार बार कहती थी कि यार हमारे मॉडर्न औरतें जो दिखानी है, अगर एक मॉडर्न सेंसिबल केपेबल पाकिस्तानी औरत आपने दिखानी है, तो उसको क्यों हर वक्त रोते धोते और बकौल आपके कि वो या तो साजिशें कर रही होगी या साजिशें सह रही होगी। या हाँ। नहीं यार, हाँ, और रो रही होगी एक कोने में ऐसे आंसू ना, हाँ, बट जिंदगी इंस्टेड लुट ऑफ दैट, गई, फुट गए। हाँ। और वो, आई लव द फैक्ट दैट किरण इज लाफिंग, एंजॉयिंग हर लाइफ, मोइज इज अ चॉइस फॉर हर, ही इज या। नॉट अ मजबूरी। सो या। दैट्स लवली। एंड Ali Raza, I know we were kind of like having a good laugh last week, but I think he's doing a great नो job. नो, ही इज अ ग्रेट एक्टर, आई थिंक ही नए लॉट में बहुत A प्रॉमिसिंग है, lot. बहुत प्रॉमिसिंग है। अच्छा जी, अब सदफ हमारे हैं एक और बहुत अच्छे ड्रामे के ऊपर, ये तुम्हारा बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव रिव्यू चलता जा रहा है, हमें बहुत Hmm. अच्छे ड्रामे पे आ रहे हैं, जिसका नाम है बहरूपिया। एंड आई आई Hmm. विश के मेरे पास थोड़ा, मैं और बैठ के इसको डाइसेक्ट कर सकती है एज अ साइकोलॉजिस्ट। और मुझे बहरूपिया इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर वो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, परफॉर्मेंस वाइज, क्रिटिसिज्म भी है हमारा गाइस, तो ऐसा नहीं कि हम, इट विल बी ऑल प्रेज एज ऑलवेज, बट मुझे लगता है कि बहरूपिया इज वन ऑफ दो शोज विच आई विश कि मैं दो दो दफा देखूं, उसको बार बार ना? देखूं, उसके एपिसोड्स, उसमें मैं
चीजें इतनी, मुझे लगता है कि यार ये तो बड़ी मजे की चीज दिखाई है इन्होंने, ये कितना अच्छा दिखाया है यार ये। और फैसल कुरैशी, ओ माय गॉड, लाइक ब्लोइंग इट आउट ऑफ द A1, पार्क। ए A1 वन, ए1, ए स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार, जितने स्टार देने देते हैं। और मुझे जो बहुत अच्छी एक चीज लगी, और जो मुझे लगता है कि कीपिंग असाइड ऑफ द फैक्ट कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बिल्कुल कॉमन डिसऑर्डर नहीं है, एक बिल्कुल ही रेयर सा डिसऑर्डर है, लेकिन मुझे ये बात एक्सप्लेन करनी है कि डिसोसिएशन का कोई भी डिसऑर्डर, डिसोसिएशन इस लिमिट पे अगर नाम ना करेंगे जो उसकी पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाती है, अगर हम एक डिसोसिएटेड खुद भी फील करते हैं ना, एक हम एक जनरली डिसोसिएशन क्या होती है, मैं बैठी हुई हूँ और मैं स्ट्रेस में हूँ एंड आई जस्ट डोंट वांट टू फील द स्ट्रेस एनी मोर, सो आई जस्ट, एक वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं कि यार आई फील लाइक समवन एल्स राइट नाउ, या फील लाइक बीइंग Really समवेयर well एल्स। illustrated in that. I think couple of scenes they did very well illustrated. वेरी वेल Beautiful. इलस्ट्रेटेड। जो स्ट्रेस उन्होंने ट्रॉमा दिखाया ना, उसके मिकाइल के कैरेक्टर का, कि जिस ट्रॉमा से वो गुजरता है, तो नेचुरली आपका माइंड जो है, क्योंकि उससे कोप नहीं कर सकता, बिकॉज आपके जो माँ बाप होते हैं ना, वो आपकी जिंदगी का सेंटर होते हैं, स्पेशली जब आप 10-12 साल तक के होते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पीयर रिलेशनशिप, यानी आपके बराबर के लोग, आप उनको लुकअप करना शुरू करते हैं। उससे पहले तक 12 साल से कम उम्र तक के बच्चे का जिंदगी का सोल जो सेंटर होता है, वो उसके माँ बाप होते हैं। वो उनसे अपनी दुनिया के बारे में सीखता है, समझता है, कोप करता है। जब उसका बाप ही उसके खिलाफ इतना ज्यादा हॉरिबल, इतना मीन, इतना टेरेबल होता है, तो उसके लिए तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल पाश पाश हो गई है। और इसीलिए वो कोपिंग उसकी तरीका यही है कि वो डिसोसिएट करता है। अच्छा, मुझे एनी जदी वाला एंगल भी बड़ा अच्छा लगा, कि वो Hmm. बेटा, उसको बेटा या जो भी उनको आप कहेंगे, बेटा ही कहेंगे दायरा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है कि आप मुझे ऐसे छोड़ के चली जाती थी, दो शी But she ट्राइड। was the khala. She was his शी वॉज अ khala. खाला, एग्जैक्टली, He शी वॉज अ खाला। married this abusive man, but apparently, मुझे अब समझ आ रही है, शुरू में I was wondering कि इसके नाम जदाहत कैसे होगी. Now हम्म। apparently, I think all this business was probably his father's, हम्म। his biological father's, and हम्म। this was stepfather या that the mom married. And you notice each time two mothers failed him. या And या he actually connects to थोड़ा सा वो जो उसका सॉफ्टनेस है वो सरा के साथ है because she is his younger sister. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखे ना, वो एक एक जो उसने अबैंडनमेंट की बात की है, रिजेक्शन का पूरा एक उसका मोनोलॉग है, Hmm. बहुत अच्छा मोनोलॉग है वो, Brilliant. बहुत कमाल, बहुत कमाल। एंड आई थिंक कि जो अबैंडनमेंट होती है उसका ताल्लुक डिसोसिएशन से कितना अच्छा होता है, मतलब प्रॉप्स टू Hmm. रिदा बिलाल फॉर मेकिंग दैट कनेक्शन, कि अबैंडनमेंट हमें फोर्स करती है, लोनलीनेस हमें फोर्स करती है इनटू बीइंग एन आइलैंड ऑफ आवर ओन, कि हम खुद एक एक जजीरा बन जाएं, जहां हम एक अलग ही कोई दुनिया जी रहे हो, जहां हम उन चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाएं जो हमें तकलीफ दे रही हैं। तो ट्रॉमा रिस्पॉन्स के हवाले से अगर आप जनरली डिसोसिएशन को पढ़ना चाहें, अगेन सेइंग दैट डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज वेरी रेयर। एंड आई विश के फर्स्ट एपिसोड में या इनिशियल एपिसोड में उन्होंने बजाय इसके ऊपर लेक्चर देने के, ट्रॉमा को के ऊपर लेक्चर देते, या ट्रॉमा से इन रिलेशन टू ट्रॉमा जो डिसोसिएशन होती है एज ह्यूमन बींग्स की, जो हमारी होती है, ये ट्रॉमा But don't रिस्पॉन्स you होता है। think they have shown rather than told? यही तो वो इस शुरू का लेक्चर की बात करी ना, वो जो साइकोलॉजिस्ट बैठ के वो जो पूरी वो तो फिर वो, आई हाँ, वो थिंक मुझे लगता है कि trying वो to they were trying to explain the thing to lay people. I mean, and पॉसिबल। obviously for you it wasn't enough, or but for me it kind of worked ओके। because I ओके। think they're showing us rather than telling. देखो, हम्म। ड्रामे की निशानी यही है कि you instinctively get the message या without their dialogues, या because television is a visual medium. या And I think sometimes हम लोग डायलॉग बाजी में इस बात को भूल जाते हैं हम्म। कि it's you. I mean, I can feel what Faisal Qureshi's character is going यस। through, and you यस। understand why. देखो, brain does a lot of things. So to protect himself from the trauma he's suffering, he internalized his life. ऑल ऑफ इट। वही ऑल ऑफ वही इट। जो आप आइलैंड कह रहे हैं ना, so he's cutting everyone off and living in a separate plane. So हम्म। work by Faisal Qureshi, I think it's a brain protective move कि हम्म। इंसान जो है they cut themselves off from reality and they हम्म। create an alternative reality inside बिल्कुल them. बिल्कुल And I ऐसा ही है। think Faisal Qureshi and the whole team, they have showed us it so well, that divide हम्म। between Faisal Qureshi's character's reality and what the rest of the world is seeing is totally different. हम्म। He's still
sees life through the lens of his abuse. And I remember there was a similar Netflix serial. हम्म. He didn't have dissociative personality disorder, so it was different. लेकिन हम्म. Benedict Cumberbatch जो है वो, he was a victim of severe sexual abuse as a ओके. child. ओके. And I think they cannot show something like that on Pakistani television, बट एक but इम्प्लाई दिखाते बताते they तो हैं. could imply, yeah. हाँ, So पॉसिबल. I'm not going to मे बी go इट्स there because कमिंग, मे बी इट माइट कम, वी डोंट नो. I, but I'm going to give Rida Bilal because she is the author of this. हम्म. So I'm not going to add on my, you know, ऐसे इंटरप्रिटेशन. extrapolations कि भाई हाँ ये होगा ये वो नहीं. No, हम्म. let's respect the author there. So, हम्म. but he also has this inner monologue continuously going, and his main hatred is less for the author of his misery. It's for हम्म. the people who didn't protect him. Yeah, that's a really good point, Sadaf. And Hmm. मतलब obviously I want to discuss Shiri Farhad also, but मैं इस पे Sadaf, I think it somewhere down the line we should do like a full session on Behroopiya, because I think कि इसमें इतने सारे points हैं, इतना कुछ है डिस्कस करने के लिए. I think जो abandonment वाली बात जो आपने कही, और ये जो एक blame है होता है ना, देखिए हमारी एक होती है, and this is now the psychologist in me talking, Hmm. I'm done being a reviewer. Like हमारे अंदर जो सदफ एक चाइल्ड होता है, हमारे इनर चाइल्ड की ना कुछ नीड्स होती हैं, जिसमें हमारी नीड्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है, बेसिक होती है ना, बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं, टू बी प्रोटेक्टेड, टू बी लव, टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी कडल्ड, टू बी हग्ड, टू बी हेल्ड. तो ये Hmm. हमारी बेसिक नीड्स जो होती हैं चाइल्ड, एज अ चाइल्ड, जो हमारी हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें दें, जब हमारी हेल्दी अपब्रिंगिंग होती है, तो ये चीज जब ये नीड्स हमारी मीट हो जाती हैं, तो हम हेल्दी अडल्ट्स ग्रो अप करके पॉजिटिव बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. मतलब जब जो भी हमारे अटैचमेंट्स होते हैं ना, तो हमेशा यही साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई ठीक है, आपकी जो अटैचमेंट रिलेटेड है वो आपकी पेरेंटिंग से रिलेटेड है, कि जैसे आपको पाला बड़ा गया था. अब आप उसको देखें कि जो मदीहा इमाम के अंदर उसको दिख रहा है, वो जितना ऑब्सेस्ड है इस लड़की से, और जो उसका प्रीवियस रिलेशनशिप भी ब्रेक कर गया है, तो चले जो उसकी एक साइकोलॉजिकल इश्यूज तो उसके अपने चल ही रहे हैं, वो अटैचमेंट भी उसकी कितनी बेचारे की ब्रोकन है, उसको एक चीज obsess हो गया है वो हासिल करने के लिए, और अब वो उसके पीछे लगा हुआ है. तो अगेन ही इज नॉट, he thinks he's looking for love, but he's not really looking for love, he's looking for attachment, some kind of perverse or severe attachment that fulfills that emptiness inside of him. And I think it's just like all of it is just so brilliant, the way that they're showing it. Yeah, you were saying something. I'm not understanding. When you say he's looking for attachment, you mean to anchor him into the world, kind of, rather than नो to. सदफ, देखिए ना, जब देखिए हम जब स्टॉकर लव की बात करते हैं, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ, क्योंकि स्टॉकर क्या होता है, जब हमने रिलेशनशिप देखी, लेट्स टॉक अबाउट मे बी खुदा और मोहब्बत, जिसमें जो लोगों को बड़ा पसंद था, लेकिन आई फाउंड इट लाइक, ओ रेड फ्लैग. जो फादी था, रिमेंबर फिरोज खान एंड इकरा अजीज वाला खुदा और Yeah, मोहब्बत. that I think that he was just a chaval, and there are plenty of chavals वेल, like him. And साइकोलॉजी बह गई. yeah, sorry. I think I said this before. इस टाइप के चवल लड़के और भी हैं, तो उनको हम्म. राजी करने के लिए ये ड्रामा लिखा गया था. बट एनीवे, डू कैरी ऑन. पर सॉरी. मेरा यही पॉइंट था ना, कि ये जो चवल लड़के होते हैं, इनकी साइकोलॉजी क्या होती है, और ग्रांटेड दैट दैट शो डिडंट रियली गिव पुट अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन दैट, ऑल्दो द टेरेबल फादर वाज देयर. बट आई थिंक इस मामले में बहुत अच्छा ड्रामा जो था वो प्यारे अफजल था. वो जो हम्म. जिस लड़की से वो ऑब्सेस हो जाता है, आयजा के कैरेक्टर से, हमजा का जो कैरेक्टर है, and ये उन ग्लोरी डेज की बात है जब खलील साहब फाख्ता उड़ाया करते थे, अच्छी अच्छी कहानियां लिखते थे जब वो. तो वो, आफाकते उन्हें उड़ाती हैं. हाँ, नहीं वो असल में मुहावरा है उर्दू का, कि वो दिन गुजर गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, विच मीन्स दैट दे वर आई ग्लोरी नो. डेज. या सो, तो वो जो दिन थे, जो खलील साहब अच्छी कहानियां लिखते थे, अब वो 8 करोड़ वाली कहानियां लिखते हैं. तो मुझे लगता है कि जैसे उसमें बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया था कि जो फादर की टॉक्सिसिटी है, वो बेटे के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर में दिखती है. तो मुझे लगता है कि ये तो बेचारा, खैर बिल्कुल ही बेचारा, इसकी तो टॉक्सिक. Okay, this is something I was going to point out, and maybe is this what you're pointing to? I don't want to यस. put words in your ओके, mouth, but टेल मी व्हाट यू सेइंग एंड आई टेल यू इफ दैट्स व्हाट आई. he is unconsciously copying the narcissistic controlling behavior that his Yes, father yes, showed him. He's copying exactly. it and imitating. This is क्योंकि why I love doing my reviews with you, Sadaf. You get it. You're getting it. You got it immediately. Yes, see, this is exactly what I was saying. This is what I was pointing towards. That this is, not only replicating, because this is what we do as adults. When we are broken adults, we are replicating terrible childhood. कहते हैं ना, खला जो है हम पुर कर रहे होते हैं, जो हमसे नहीं हो रही होती बचपन की.
तो बहरूपिया भाई कमाल है, हम इस पे कभी और लंबा सा। डायरेक्शन को प्लीज बिफोर वी फिनिश अप, हाँ, फैसल कुरैशी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस. बहुत कमाल, बेस्ट बेस्ट। And I'm going to say I love Saraz as well. And believe it or not, because I hated both of them in Muqaddar because that show was terrible. I mean, I It's am terrible. sorry. Yeah. I am तो sorry. No matter राजा how रानी। I hated it, right? But this show works. It's a dark thriller. And, I mean, come on, you and I offline were discussing the direction. कैसे scenes move होती हैं, कैसे they corrected. It was amazing. Oh, that's This okay. is my little bichari anger topper. Sorry, Sadaf, you carry on. You were saying. I'm just praising the director, right? Hmm. Because he is fabulous. He really is. The way he's moving the story forward. लेकिन मैं डायरेक्टर साहब एक छोटा सा मैसेज है. आप अपने स्टार्स से मत डरें. अगर उन्होंने कपड़े गलत पहने हैं उनको कहें कि चेंज. ओके, प्लीज. I know हाँ. Faisal Qureshi is a superstar, but that jacket is a crime against humanity. Okay. Also, I feel like the set is overdone. Although I love the lighting, I think this is better than so many things I've seen on Netflix in the past couple of months. I think that this is so well done. I feel like the set is maybe overcrowded at times, but the lighting, the angles, the camera work, oh my God, this is like stellar world class stuff. Yeah, world And class stuff. the way the scenes, this is my last word on it because I could go on. Yeah, I same, want to do a separate review for this, same. but in general, the way that the Madiha Imam ko की interest वो capture कर रहा है, Yeah. he's not pushing himself, he's just coincidentally. वो नहीं है जैसे वो लड़कियों को convince कर देते हैं Yeah. कि ये तुम्हारी तकदीर में मैं ही हूँ, कि बार बार वो ना से मिल रहा है accidentally there. And बर्थडे पार्टीज, वो 90s वाला रोमांस जो नहीं वो फिल्मों और ड्रामों में होते था, कि आपकी सालगिरह मुझे याद है फलां चीज, तो ओह, शी हैज आपकी दिस गाड़ी आइडिया. खराब हो गई, मैं आपको घर Yeah, तक छोड़ा हूँ। हाँ हाँ। and he is there and she slowly begin, you notice the gradient change. And it's not sudden कि suddenly वो कहती है अच्छा चलो, तो वो she allows herself to be railroaded by him, and he's coming across as this wonderful caring guy, but it's all an act. No, 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 no. This is not gonna end well. I hope. I mean, I'm interested to see how they'll take it forward. So, guys, if you're not watching Behroopiya, what are you doing? Please watch Behroopiya. Such a brilliant show. Sadaf, I want to quickly talk about Sheeni Farhad. Also, a really, really good show. It's becoming my comfort show, actually. Hmm. What's your take on Sheeni Farhad? It's a really good quality show. And of course, Farhan Said's in it, and he's one of our favorites. So I'm really enjoying it. It's good. Hmm. And I love the parallels. And I was talking to somebody, Khwaja Rashid Anwar, Khurshid Anwar, जी sorry, जी. जो थे वो Composer. composer. उनकी Hmm. family आ रहती है. I'm friends with them. अच्छा. And I was, yeah, and I was, they were laughing and saying, I called his daughter-in-law and I was saying like, ये आपके father-in-law मुझे लगता है वो did a cameo. She goes, उनकी शक्ल ऐसी नहीं थी लेकिन it looks like अच्छा. that. Yes. So I mean, my Indian friends always say you Pakistanis have 6 degrees of separation, right? Hmm. Somebody always knows someone, right? So No, but it's such a good show, and I think कि जो मैंने पिछली दफा भी कहा था कि जब आपने फीमेल कैरेक्टर को स्पेस दे दी तो शो उठ गया। तो अभी वो हो रहा है, और मुझे फरहान सईद के, आई जस्ट दिस इज गोइंग टू बी एन ओड टू फरहान सईद प्रॉब्ली, बिकॉज आई थिंक फरहान इज वन ऑफ दोज वेरी रेयर एक्टर्स जो छोटे छोटे माइक्रो मोमेंट्स में भी इतना कुछ ले आते हैं। और वो बेचारा इतना अंडररेटेड है एज एन एक्टर, मुझे लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अंडररेटेड है, हिट एक्टर है, बड़ा एक्टर है, लोग पसंद करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, इज वेरी नहीं यार, पॉपुलर. मतलब आई नो, बट उसको पता नहीं क्यों। लाइक इज अ टेक्निकल, ऑन अ टेक्निकल लेवल यू आर सेइंग. यस यस, आई थिंक उसको चॉकलेट हीरो बना देते हैं, या वो हमजा बनता है जब वो मेरे हम सफर में, या उसको सुनो चंदा में जो उसका एक मतलब That is his strength as a chocolate hero. I mean, हाँ. it's not like he has Fawad Khan's looks. He's Hmm. cute, but he's not Hmm. Fawad Khan, No, I think for right? me He he's a he very, has he a has a lot very, of attention to him. Yeah. yes, and he's a very chameleon sort of an actor. Like फरहाद जो है उसके अंदर एक ग्राविटास है, जो कि आप कहते हो कि यार इस एक्टर जो ये लेकर आ रहा है एज एन एक्टर, Hmm. किरदार के अंदर भी लिखा है उन्होंने, लेकिन आप नोट करें कि किरदार के अंदर बहुत कम पता चलता है कि
वो किताबें पढ़ता है, या उसको किताबें पढ़ने, उसको कहानी की समझ है, या उसके अंदर एक इंटेग्रिटी है कि उसने पैसे नहीं लिए अपने घर वालों से, भागा जब वो घर से भागा हम्म। तो उसने पैसे छोड़ दिए। ये सारी चीजें उस किरदार के अंदर हैं, लेकिन देर फ्यू एंड फार बिटवीन द काइंड ऑफ ग्रेविटास एंड द नुआंस एंड द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ही ब्रिंग्स टू Farhad is why, even though I was like, यार, there is some imbalance in the story, I still was so like, अच्छा फिर क्या हुआ? I want to figure out फिर क्या हुआ. So I think Shri Farhad is Farhan Saeed's triumph first of all, but then हम्म। also I think period pieces, as far as period pieces go, it's so good to see period pieces being done right. I think the fashion and the lighting and all this, though you have to praise the director Asad Mumtaz Malik for it, for that there it takes some serious amount of effort. इट्स वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट, there's no, Very no हमें consistent. कोई आज तक तो झोल नहीं नजर आया अभी तक कि तो वो नहीं है, हाँ. yeah, because हाँ. even if you think about like Arturo and those kind of really really हाँ. professional dramas, या 21, तो बिग उसमें ड्रामा. एक दो बार जैसे ना वो सेल फोन नजर आ गया, वो अच्छा, मोबाइल गेम ऑफ थ्रोन्स में या था, रिमेम्बर द यू नो स्टारबक्स कप इन या गेम ऑफ थ्रोन्स, या ऑफ कोर्स. सो आई थिंक फिलहाल तो, एंड सदफ, मुझे लगता है कि वी नीड टू प्रेज आवर बेचारे मेहनत कश डायरेक्टर्स. ये बेचारे बड़े मुश्किल कंडीशन, बड़ा आसान है बैठ के हमारे लिए, हमारी तरफ बोलना यार ये लाइटिंग नहीं ठीक की उन्होंने, ये देखें बाल ऐसे थे और जूते ऐसे थे. लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा उनको हमें एक मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन भी देना चाहिए, एक राउंड ऑफ अप्लॉज देना चाहिए. गाइज, मतलब आपको जाता है बिल्कुल खराज तहसीन, बिकॉज मैंने एक तो देखा भी है, और मैं वैसे भी लोगों को बताना चाहती हूँ कि आसान काम नहीं है. पाकिस्तान में एक तो नॉर्मली भी ड्रामा डायरेक्ट करना आसान काम नहीं है, और उसके ऊपर से पीरियड पीस डायरेक्ट करना, जहाँ पे आपको बहुत छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. सो आई थिंक श्री फरहाद एक बहुत अच्छी वॉच है. और मुझे एक तो उसकी बहन से How are मुझे you पसंद. finding Kinza Hashmi? Because you were kind of like, oh, पता नहीं, उसका character अब नहीं बोल रहा. अब how हम्म. are you finding her? Oh, really good now. I think that I'm also liking the fact that she has her own track now, finally. It was Hmm. missing in the beginning, and I think I'm glad that that's there. My main concern was that I feel like sometimes the sister now is my problem. Writer सोचेंगे पर खातून से एक problem रहती रोंदी बूथी वो ना है. पता नहीं हाँ. क्यों ऐड कर दी उन्होंने. नहीं, और वो लड़की बेचारी एक्टिंग भी आई थिंक वो थोड़ा सा मिस कर दिया है उसने. शी इज टू वाइनी ऑल द टाइम, कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो बेचारी सोप ज्यादा करती है ड्रामे वो. तो उसने उसको सोप ट्रीटमेंट दिया हुआ है अपने कैरेक्टर को, जो कि उसको नहीं देना चाहिए था. आई थिंक इट वाज अ वेरी सटल ब्यूटीफुल सॉर्ट ऑफ अ ड्रामा. वो जब भी आती है, उसका सीन जब भी आता है ना, आई एम लाइक It looks अल्लाह. out of place. It Oof. looks out of place. And she's very hyper melodramatic. It's just, it's that's not working for me at all. But the rest of it is brilliant. If you think about the conversations between Farhad and his friend, and they're Hmm. light-hearted, एक दूसरे को बगैर ये वो कह रहे होते हैं, तू जा पर अच्छा दफा हो जा फलान etc. And some of it's extemporized. And Hmm. उनका अपना conversation है आपस में, जैसे दोस्त बात करते हैं. हाँ. And and then you have Rondi Boothi on the other side, right? या मैन, Right? So कांस्टेंट. और yeah. इतना ज्यादा ओवर, उसके एक्सप्रेशंस भी बहुत बहुत हार्श हैं. और बेचारी शी इज नॉट अ बैड एक्ट्रेस, बिकॉज रोना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत, मुझे तो मतलब I मुझे. I think this is how she's interpreted पॉसिबल, या शी the इज. personality of her character. So या anyway, it's a learning curve for everybody. So एवरीबॉडी. maybe next time she'll take the feedback and we'll see a difference. I mean, obviously this show is done, right? But in हम्म. the show, maybe she'll learn कि भी थोड़ा सा lighter touch. हाँ, मुझे Huh? लगता है वो 8 PM वाले में ना, स्लॉट में Mm. ये सब नहीं चलता है. 8 PM Yeah. वाला ड्रामा है ये. और ये एक वैसा, इसके ओवर, चले 8 PM में भी ओवर द टॉप ड्रामेटिक भी हो सकते हैं, जिस तरह का कुछ ड्रामे होते हैं वो मजे की भी लगते हैं. लेकिन जो ये ड्रामा है, इसमें इसमें बिल्कुल भी इसकी गुंजाइश नहीं थी, इस पूरे उसकी इतने इतने लेवल ऑफ मेलो ड्रामा की. वो भी भाई तू साइड एक्टर है, मतलब इंसान तेरा साइड कैरेक्टर है, तू मेन मेन कैरेक्टर एनर्जी मत दे, नहीं चाहिए अभी. और वो, लेकिन खैर चलें, बेचारी Chalo, विशिंग she's बेस्ट, शी इज अ trying. गुड एक्ट्रेस. शी इज अ गुड एक्ट्रेस, विच इज व्हाट मेक्स मी फील इवन वर्स. अच्छा सदाफ, आखिरी ड्रामा जिसके ऊपर हम बात करेंगे, फिर छोटे छोटे ड्रामों पे हमें और बात करनी है, लेकिन जितना भी हम बात कर सके तो हम करेंगे. सदाफ, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ हिजर इफ यू सॉ इट? डिड यू सी इट? I did see it. I make a point to see it because हम्म. it is one of those dramas, and I know why it's not getting rating. It's हम्म. so painfully true कि आप like, वो ना, it's like I mean the episodes I'm watching, and you can tell you want to advise these two, but you know they're not listen. हाँ. इतने अच्छे उन्होंने अपने किरदार निभाए हैं कि I cannot tell you
कि हाँ। आई अल्ताफ एंड, चलो आपस में उनकी केमिस्ट्री तो कोई नहीं, बट मे बी दैट्स द पॉइंट, राइट? हम्म। I think it's very hard to have chemistry with Imran Abbas because he is so good looking कि वो नहीं है आपने वो तो, ये तारीफ है या इंसल्ट है, क्या है नहीं ये? नहीं, नो नो, इट्स नॉट एन इंसल्ट। वो हम्म। अल्लाह ने उन्हें हुस्न दिया है, जो साफ जो बात है। एंड वी हैव हम्म। टू बी, यू नो मी, आई एम हुस्न प्रस्त, ओ राइट? यस, लुक्सिस्ट, ये है हाँ। कि इट्स वेरी हार्ड फॉर एनी वुमन टू compete with Imran Abbas and हम्म। Sherry, Cherry right? are never also, Yeah. yeah. I'm sorry. I mean, I've already had the ताने from my husband ना। आप हम्म। हमेशा उसकी एक्टिंग की तारीफ इसलिए करती हैं कि वो हाँ। उसकी शक्ल अच्छी है इस लड़के की। I was हाँ। talking about Sherry ना। हम्म। So, and but I think Imran Abbas's looks hide a brilliant actor. He's हम्म। actually a very good actor, and he's done a restrained role in this. I'm very impressed with him. I'm very impressed with Hina Altaf as well. And हम्म। the arguments, the writing, हम लोग जंजीबील की इतनी complaints करते हैं sometimes के, उफ। oh God, what is this? What हम्म। ये जो कहाँ मसाला से टाइप निकाला है, कहाँ से निकाला है है। उन्होंने ये स्क्रिप्ट, माय गॉड। उफ। And this, right, the way those arguments, come on, you tell me, right? We're both married women. Do we not recognize those arguments and the हंड्रेड positions those people परसेंट are taking? 100%, एंड आई थिंक एनी बडी हुज बिन मैरिड फॉर मोर देन 10 years कैन टेल यू। मेरी शादी को तो 15 साल हो चुके हैं। एंड Mashallah. माशाल्लाह, एंड आई मीन कम ऑन, दीज आर, एंड आई थिंक मैरिज के आर्ग्यूमेंट्स के अलावा सदफ, जो मॉडर्न औरत का डिलेमा है या मॉडर्न मर्द का भी डिलेमा है ये, जो मुझे हिजर की ब्रिलियंसी इसी में लगती है। और मुझे हिजर, उस पर मैं आती हूँ ब्रिलियंस पे, मुझे सिर्फ थोड़ा सा जो एतराज है, मुझे यही एतराज है कि जितनी ये ब्रिलियंट शो था, उतना उसको वो ट्रीटमेंट उस तरह का नहीं मिला। स्टाइलाइज ट्रीटमेंट होना चाहिए था इसका। दिस इज वेयर आई थिंक द डायरेक्टर ड्रॉप द बॉल, एंड द performances are absolutely fine. I think Hina has played it very smartly in the sense that she's not done an over emotional thing, because you do not want to see her as an over emotional person. She does, अगर शुरू के एपिसोड आपको याद हो तो वहां पे उसका एंजाइटी और पैनिक और वो जो सारी चीजें उसने दिखाई थी, लेकिन वो भी बड़ी एक लेवल के हद तक थी। और उसकी और इमरान अब्बास का जो रिलेशनशिप है, अगर आप देखो ट्रूली, तो वो इकट्ठे Hmm. उस तरह रोमांस कभी उनका हुआ ही नहीं। वो जिस सिचुएशन में था, उसने से शादी की, शादी हो गई, उसको बाहर जाना था, बाहर चली गई, अब बाहर सपोर्ट करिए, बच्चा हो गया, अब ये प्रॉब्लम आ गई सामने से। तो आई थिंक कि इसीलिए वो चीज दिखाई ही उन्होंने, शायद राइटर ने शायद ये सोच के नहीं दिखाई कि आपने दिखाना है कि एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है। प्रैक्टिकल रिलेशनशिप में जब वो Good थोड़ा सा point. भी इमोशन नहीं होता है, तो फिर वो ये होता है कि अच्छा, मैंने ये चीज, इट्स ऑल ऑफ इट इज वेरी मैटर ऑफ फैक्ट। एंड कमिंग टू द प्रेज ऑफ द शो, आई थिंक दैट मॉडर्न मॉडर्न रिलेशनशिप्स में इससे बड़ा अच्छा कमेंट इस वक्त टेलीविजन पे मौजूद नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट Hmm. द, लाइक जब मैं मैरिज स्टोरी देख रही थी, इसका उस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए था, जो एडम ड्राइवर और स्कारलेट जोहानसन वाली जो फिल्म थी, अच्छा, वो I did बहुत अच्छी। not see that. Okay, How so was it? it was a very again a very small story. It was a film, and it Hmm. was again similar conflicts कि उसका करियर है, उसके करियर के लिए उसने क्या सैक्रिफाइस किया। मर्द एमैस्कुलेट फील कर रहा है, औरत Hmm. जो है वो अनअप्रिशिएटेड फील कर रही है। तो वो बहुत अच्छे से जो उनके आर्ग्यूमेंट्स थे, तो इसमें जो कुछ मोमेंट्स थे उसको आपको एलिवेट करना चाहिए था, स्टाइलाइज करना चाहिए था। एक बहुत ही मॉडर्न सी स्टोरी थी। Hmm. आपने, अच्छा, इसमें इवन जो बाप है, बाप इतने मजे से बात करता है, उसको एक डायलॉग बोलता है, लाइक यार कितना खेल सकता था डायरेक्टर इससे। वो कहता है कि यार तुम तो ये वाली सबूई हो ही नहीं, जो जो जिससे हम बात करें, तुम इतनी चिड़ी हुई क्यों हो हम लोगों से? मतलब व्हाट इज, हु इज दिस पर्सन, वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस पर्सन। एंड देन सडनली शी इज लाइक, I really love that scene. oh my That god, is. that's such a penny drop moment, like the penny has dropped for her, and she's like, oh my god, this is what I'm doing. So that deserved better treatment. And it's not a problem of the actors. The overall pitch of the drama is very soapy, which it did not deserve. I think it deserved so much more than that. Thank you for that because I was looking for the words. It's Yeah, too soapy, it's yeah. been treated like in a very soapy kind of way, Hmm. melodrama or uh, confrontations rather than scenes from a life. yeah. Thought, Sana, yeah, yeah, Yeah. given me तो word to तो describe. मुझे यही लगता है कि ये इसके साथ जो ज्यादती हो गई वो ये हो गई, लेकिन इतना अच्छा ड्रामा है ये, और इतनी कोई इसमें एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ। एक दफा हुआ था बस, वो जो वलीमे से जो चली गई थी अपनी ऑपरेशन करने, उसके अलावा पूरे ड्रामे में एक दफा भी मुझे नहीं लगा कि ये कहाँ होता है, ऐसा तो कहीं नहीं होता, ये तो कहीं नहीं हुआ। इवन जो वो जो साइड कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी Hmm. इतना अच्छा बिल्ट इन है। एंड दिस इज व्हाई वी हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम जंजीबील।
बिकॉज बट लाइक डूड यू कैन राइट समथिंग, एक इररेलेवेंट साइड कैरेक्टर जो कि वो जमीर की जो एक्स थी उसका पूरा जो था, हम्म। आपने उसको कितने अच्छे से मतलब दिखाया, उसकी एक एक चीज आपने सही बुनी। लेकिन फिर आप मेन कैरेक्टर में फिर हम जब वो गैर जैसे ड्रामे देखते हैं, हम कहते हैं हम्म। ये क्या हो रहा है। नहीं, वो आई थिंक शी इज एक्सप्लेन्ड इट सेवरल टाइम्स इन इंटरव्यूज के, लोग मुझे ना समथिंग्स अ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तो आप हम्म करके वो लाइट गैस बिल देने के लिए करते हैं। बाय द वे, आई थिंक गैर इज अ लिटिल बिट बेटर देन वी आर assuming. It was pulp fiction, but it was pretty good written. And but it was like the situations were like, I think they should have been set 20 years ago. Right now, some of that stuff is लॉजिक भी मिसिंग थी उसके अंदर, मतलब बड़ी बड़ी जगहों पे लॉजिक वेंट टू हेल्थ वहां पे, मतलब बिल्कुल टुक अ and फ्लाइट टू Adil टिम्बकटू। deserved better. Adil Adil Hussain. deserved Adil Hussain deserved better, not his character. I hated his character. So Hijr is a must watch. But Sadaf, before we sign off, I have to quickly just say a few words about Jurwaa. मतलब जुड़वा क्या Can है I ये? can I say something more about Hijr first? Yeah, go Right? ahead, go ahead, go ahead. Because I am so impressed with the performances. हम्म I wanted to see you know that scene you mentioned with the father, और हम्म वो जो एक शैतान की तरह, we are told that शैतान गुस्सा दिलाता है, and हम्म you could see the anger rising in Hina Altaf कि मेरी हम्म success जो है ना वो मेरी, I'm a mujrim because of my success. This is I think no matter how modern you get, but there are certain limits you don't cross because it becomes you open the door to cheating, and हम्म that's exactly what Hinal Taf's character is doing. She doesn't mean to do it, हम्म and and I'm glad that they didn't show कि Imran Abbas का character did not, वो जो Zamir उसका नाम है ना, right? हम्म He didn't get angry and create a scene. तुम हम्म के साथ बैठी हो, अपने शौहर के साथ नहीं बैठी. He just saw his wife in a restaurant with another man who is a colleague, and he हम्म said, okay, और बच्चा भी छोड़ गया, and he's irritated, he's not angry, right? And हम्म why is he irritated? He's irritated because you're not communicating with me. But what he doesn't understand is he needs to explain his relationship with that other girl, what's हम्म going on. It's quite innocent. If he let his wife in on his whatever problem he's in, then maybe she would trust him more. लेकिन नहीं. And the same with her. वो ऐसे एक्ट कर रही है कि जैसे कोई छोटी बच्ची हो 16 साल की, instead of a surgeon. एंड लाइक And एन इम्पेचुअस चाइल्ड हु इज लाइक मैंने ये लिया है, मैं तो यही रहूंगी, मैं तो यही करूंगी, मैं तो भाई मैं क्या तो फर्क यही पड़ता है, कहूंगी. हाँ क्या फर्क And पड़ता she है। doesn't, and what is worse is she's not caring about her child. वो ना सिर्फ हम्म दुनिया से रूठी हुई है. मैं, right? And हम्म what about the welfare of your child? How does या he feel that you've left home? आई थिंक वो बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने दिखाया है कि उसने कहा कि जी आई वांट टू बी, एंड आई थिंक दैट दैट इज वेयर आई लाइक दैट हिना प्लेड इट सो नाइस एंड सिंपल एंड कूल एंड काम। अगर वो जरा सी भी मेलोड्रामेटिक होती ना, आई वुड हैव हेटेड दिस कैरेक्टर। Hmm. एंड यू डोंट वांट टू हेट दिस कैरेक्टर व्हिच इज व्हाट मेक्स द कॉन्फ्लिक्ट वर्थ इन्वेस्टिंग इन, अदरवाइज तो आप एक आप बाइस्ड No, हो गए ना। I really hate her. I have to stop myself from hating her. रियली आई डोंट हेट हर एट ऑल। No, and there's a reason because I'm a bit of a conservative traditionalist, right? As people can guess, right? So I had to push that away, all my हम्म thinking कि भाई हम्म ये तुमने गलत किया, क्यों तुम गई डिनर पे? And I हम्म had to put myself in her character's shoes. I had to हम्म beat down that devil जो मेरे पास बैठा हुआ है, कह रहा है कितनी गलत है ये, कि हम्म her as a human being and why is हम्म she doing this, कि उसके लिए ये सब कुछ गलत नहीं है. आई थिंक उसके अलावा भी सदा मेरे लिए इसलिए भी उसको, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट अबाउट बीइंग लिबरल और कंजर्वेटिव, मेरे लिए ये भी एक उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ पर्सन वो जनरली कोई बहुत अफेक्शनेट, और उसकी आप पर्सनैलिटी देखें तो वो बहुत Hmm. अफेक्शनेट स्पंकी बबली, शी इज नॉट दनानीर फ्रॉम मीम से मोहब्बत, शी इज दिस वेरी, Very good point. या Yes. शी इज अ वेरी, होती है ना लड़कियां ऐसी जो पढ़ाई लिखाई बस उनके दिमाग में वही एक होता है, टनल विजन सा टाइप का उनका होता है, पढ़ाई लिखाई करियर में वो इतनी I think इन्वेस्टेड होती। you have to be like to be a surgeon in particular. You एग्जैक्टली can't be that ba 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 हाँ ba. एग्जैक्टली वो आप नहीं बन सकते। Right. और दूसरी चीज ये भी होता है कि जो एक कुछ इट्स ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, और कुछ Hmm. पर्सनैलिटी है, और कुछ रिलेशनशिप उनकी भी कहीं
ऐसी बनी ही नहीं। वो कोई, वो कहते हैं जवानी की मोहब्बत होती है। जो लोग जवानी की मोहब्बतें करते हैं ना, तो वहां पैशन कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं रहता है। जो रिलेशनशिप्स प्योर प्रैक्टिकलिटी की बेसिस पे होती हैं, उन रिलेशनशिप्स में प्रैक्टिकलिटी जब कहीं वो भी कहीं रह जाती है, तो फिर कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है इतनी एफर्ट डालने की, जहां तक रही वो माँ बनने की बात ना, मुझे उस पे बड़ा हुआ। मैंने कहा यार, इसने बेटे की बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा, जो आप पॉइंट कह रही हैं कि भाई शी डिडंट इवन थिंक कंसिडर हर सन। एंड आई But थिंक, then, we get social media telling, why is it always women who have to? I know we'll get comments like that, right? If we said this on Twitter or something, but I'm going to then be the devil's advocate here. go ahead. I think that I didn't find any Hmm. demonization in her, and I like that, because I think Hmm. ये कभी कभी ऐसा तो नहीं है, वो कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना। हमने अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी सोसाइटी में बाप के प्राइमरी केयर गिवर होने को बहुत मिनिमाइज कर दिया, जो नहीं करना चाहिए। माँ की मोहब्बत कहीं नहीं गई है, और मैं ये नहीं कह रही कि वो माँ माँ को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, या माएँ मोहब्बत करने वाली नहीं होती हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि एक माँ जब एक रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप में उसने ये तो नहीं कहा कि मैं बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, आइंदा नहीं मिलूंगी तुम लोगों से, और आई एम लीविंग यू ऑल। ये तो नहीं कहा उसने। उसने शी जस्ट सेज आई जस्ट नीड सम टाइम ऑन माय ओन। नाउ दिस इज अ I चाइल्ड। disagree. I हम्म। disagree. I mean, my point of view is, and I know you're kind of playing devil's advocate there, but I हम्म। will be, देखो, whenever you do something, हम्म। you have to, as a parent, have to think about the effect, the trickle down effect या। on the child. हम्म। So, and you notice they highlight this. चलो हमने director की वो criticize की है, we critiqued his work, but here I think the director has blended it really well. कि वो बच्चा बार बार पूछता है, they're मेरी going माँ का out है। somewhere, where is my mother? I या miss या my या या mother. या वो गुड इसीलिए टच। तो पिकअप हुआ, वरना नॉर्मली ये होता है ना, कोई बहन या बाजी होती है तो वो समबडी इन ड्रामा, तो वो कहते हैं इसको ले जाओ, इसको खाना खिला दो, तो वो बच्चा बैकग्राउंड में चला जाता है, राइट? हाँ No, हाँ। the child is front and center, and I give credit to both writer and director कि उन्होंने बड़े तरीके से, again, show don't tell, right? श्योर डोंट टेल। And I got the impression immediately कि हाँ, इस गरीब के ऊपर he sees her in a restaurant with someone else, but she's not interested in him. एंड डोंट यू लाइक द फैक्ट दैट द फादर नॉट फॉर अ मिनट सेज के मम्मी हमसे नाराज होकर चली गई है, चुपचाप खाना खा लो जो मैं दे रहा हूँ। ही सेड नहीं Yeah, बेटा, मामा इज जस्ट गोना बी अवे फॉर अ व्हाइल, शी इज care गोना of the कम बैक। child. या टेक So केयर ऑफ द you चाइल्ड। Zameen a foreign hero ban gaya in my nazar, because he's thinking of the welfare of the child rather than demonizing his mother. Acha, to me, he's not the hero. To me, I Acha, always, yeah, because to me, I'm like, why can't you set your ego aside and just live in that house? Because women are expected to do this too. Even if you're a capable woman who's married a man who's just as capable as you are, but he's achieved more, a woman has to be okay with it. Why can't a man be okay with a woman I achieving think more than he him? can. I don't think that's it. I think it's the lack of communication वो that तो is है ही है, वो तो disappeared. वो She तो है was ही। living with him in that house. I mean, and ये बड़ी पुरानी बात है. They always say ना, communication, communication. लेकिन दोनों अपनी जिद पे पक्का भाई अड़े देखिए, हुए हैं. फड्डा तो होता ही तब है जब दोनों जिद पे पक्के, मतलब पक्के हो जाते हैं, तो फड्डा तो बन ही जाता है ना। एक एक रीजन की वजह से एक इमैस्कुलेटेड या जो भी फील कर रहा है, Right. और एक जो है वो इगोइस्टिक फील कर रही है। तो रीजन तो अपनी एक जगह दोनों का मौजूद है, वो हमें दिख भी रहा है। दैट्स द ब्रिलियंस ऑफ हिजर। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हाउ वुड आई वांट इट टू रिजॉल्व इट इज, आई वुड वांट द मैन टू काइंड ऑफ टेक अ स्टेप बैक एंड रियलाइज, एंड ऑब्वियसली द गर्ल ऑल्सो हैज टू रियलाइज हर मिस्टेक। But what will it take for them to realize the mistake is what I'm looking forward to. I don't know, and I think that's the brilliance of the writing. I really like it because you can see both sides. You Yeah, really can. yeah. कि भाई she फिर क्या हुआ? And there are a lot of people, I know a lot of people who are not doctors, and they हम्म। married to someone who's a barrister, who's a, the कोई भी, हाँ, बड़ा प्रोफेशन, high हाँ। flying career, and हाँ, the husband doesn't have that much of a high flying career, and there is some adjustment, but isn't there some adjustment in every marriage, there in is। every relationship? There's always an adjustment. You can have two doctors together and they get divorced, or two barristers together and they get जुआ divorced. है So भाई, जो जुआ yeah. है बहनों, जो शादी करने जा रही हो अभी से बता रहे हैं जुआ है। सब Mm. टिक बॉक्सेस करके भी जुआ खराब हो जाता है, और कुछ लोग ऐसा अंधे कुएं में छलांग मारते हैं तो भी एकदम से सुरखरू हो जाते It's a, हैं।
I think you said this to me way back in the day. I was commenting on some, there was a lot of marriages a few years ago, I think COVID ke baad or whatever. हम्म. And you were saying like two crazy people you think are not going to make it. And they actually have the stablest relationship. And the people that you think, I nahi, ye made for each other, वो 2 मिनटों में अलग हो जाते हैं. ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, Yeah. देखा है, हमने देखा है. Hmm. Hmm. तो गाइस बस बिफोर वी साइन ऑफ, जस्ट वांट टू से समथिंग अबाउट जुड़वा सदफ. मैं जुड़वा के बारे में बात के बगैर नहीं Okay. जाऊंगी, बिकॉज ओ माय गॉड. अच्छा, ओके, आई लव इट. ओके सदफ, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, बट आई लव दिस शो. आई एम एडिक्टेड टू इट. मैं सब छोड़ के पहले जुड़वा देखती हूँ अपना जो Okay, ड्रामा. guys, I'm going to take some cough medicine. या, Okay. सो आई मीन, मैं जुड़वा देखती हूँ बिल्कुल एडिक्ट की तरह. मुझे बहुत पसंद है जुड़वा. मुझे ब्रेन रॉट ड्रामा. राजा रानी पे हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे गाइस, बिकॉज वो भी एक बहुत जबरदस्त ब्रेन रॉट है. बहुत मजे का ड्रामा है. तो सदफ की तो बात नाम लेते ही सबको हंसी आ गई. तो Hmm. जो है यार, जुड़वा में कुछ भी होता है. मतलब कोई सेंस नहीं है, कोई कॉन्वर्जेशन क्यों कहीं किधर कुछ भी हो जाती है, मतलब. और सेगवेज तो इतने मजे से होते हैं. नाना बू, मैं यूं नहीं करूंगा, मैं शादी करूंगा. अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ. फिर थोड़ी देर बाद कुछ होगा. उसने क्या उसको अगवा कर लिया था? नहीं, उसको बिल्कुल ठीक थी. अच्छा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ. सीन कहाँ जा रहा होता है, अचानक से कुछ Is और हो it a जाता है. victim? Is it a victim of its success? कि maybe वो stretch कर रहे इट्स बैड हैं, राइटिंग. or adding episodes for no reason. इट्स You know? बैड राइटिंग विद ब्यूटिफुल पीपल. सो you're addicted, and it's like, oh my god, Adnan Raza Mir's Urdu. Oh my god. हुआ है उर्दू जुबान का. नहीं सदफ, मैं देखिए सदफ, मैं बहुत कुछ, मैंने आईना आसिफ को भी, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तो जो गलती बोलती है ना तो लेकिन अदनान रजा मीर नीड्स टू फिक्स हिज उर्दू. मतलब आहद की उर्दू इतनी बुरी नहीं थी, इसकी तो बहुत बुरी है. बहुत. और आहद बेहतर एक्टर भी था, बट अदनान रजा मीर की उर्दू, अल्लाह रहम करे भाई, क्या टांगे तोड़ा है वो उर्दू की. बस कर दे बेटा. बस वो शक्ल के बल के ऊपर चल रहा है ना. बहुत खूबसूरत बड़ी बच्चा है वो. शक्ल है, बड़ी बहुत खूबसूरत बच्चा है, और आई थिंक वो इम्प्रूव भी कर रहा है एज एन एक्टर. मैं उसको बिल्कुल, मैंने तो पहले तो उसको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया. फेरी टेल में ही वाज टेरेबल. अब ही इज नॉट सो टेरेबल. बट ब्रो, लाइक उर्दू, उर्दू ड्रामा कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? उर्दू बोलना सीखो थोड़ा. कुछ लोगों के साथ बैठ जाओ, थोड़ी देर बफर जोन में गुजार लो. क्या करना, क्या, ओह माय गॉड, इट्स टेरेबल. बट ओवरऑल आई थिंक द ड्रामा इज लाइक प्योर, प्योर अनहिंज्ड ब्रेन रॉट. entertainment. Just, people are enjoying it. And look, I have no complaints so long as there's no toxicity. And talking of toxicity, can we have one word for Humraaz? Go ahead. Okay. I'm not watching. So please tell me Okay. what do you I think for my sins, I took one for the about it. team. I take it for You the team, want- so I'm not going to watch it. Yeah. Okay, Veena, I want to, because what is hurtful about that whole drama is Farooq Rand is a brilliant and acclaimed Ishq director. Murshid and then this. Yeah. No, Okay. उससे पहले, I mean, Ishq Murshid जो है, it's great, but Farooq Rand has got he's an acclaimed director. He's Hmm. got a history of such brilliant dramas. उनकी जो career directory क्या कहते हैं जो Trajectory है. yeah, I mean, I've seen really, really old dramas of his, and he's, but and then this, which is like so badly edited, आपको पता नहीं चल रहा कि किसके बारे कौन बात कर रहा है. Uh, Hmm. this is supposed to be a Is it dark. is it also bad writing? Sufia Khurram has written it. Is it also not well written? I am very hesitant to like discredit writers because उनकी power कोई नहीं होती, right? What happens is that I think it is a bit silly because आप देखें ना, Aiza Khan comes out for lunch with her friends, okay, Okay. Hmm. and she's wearing किसी के वलीमे का जोड़ा because she's Aiza Khan, Okay. right? तो वलीमे का जोड़ा वो पहन के आ जाती है. It is absolutely brilliant, beautiful. She is looking like a goddess. And what are her friends wearing? Hmm. Jeans and a shirt, right? Hmm. डायरेक्टर साहब, आपको नजर नहीं आया कि कितनी Hmm. ridiculous ये बात है कि Do and you think then Aiza had anything to do with it? Like she decide, because she decides her wardrobe. well, you can give guidance. I mean, she had a brilliant wardrobe in Meh, and that was very modern. So, Hmm. Aiza का इवन ego. इन जाने जहां में भी Yeah, बहुत बहुत, हाँ, अच्छी लगी beautiful. In थी. fact, बड़ा मेरा हो गया था कि भाई I wish I had that wardrobe because वो जब हम्म.
पोचा भी कारी होती है, शी लुक्स अमेजिंग, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बट इट्स, आई कीप सेइंग टू पीपल, राइट, हम्म दैट your wardrobe is also part of your arsenal as a, I'm sorry, it's part of your skill set, हम्म। right? Actor. It promotes the your character's Builds your mood, character. and It yeah. sets your character up. Yeah, yeah, yeah. Absolutely. So Absolutely. that aside, you have this kind of like weird jumps in storyline. I know, and it's sometimes I feel like some of the scenes have been afterwards grafted on to make Hmm. story make sense. कुछ मुझे शक पड़ रहा है, right? I'm not Possible. an expert, but it looks like कि किसी ने कहा है कि यार ये तो बहुत ही complicated है, हमारी audience नहीं समझेगी. Let's film these scenes and put them in. And Hmm. then of course there is Feroz Khan, Hmm. who, तो आप अगर ग्लाउरिंग कर रहे हो ना, ऐसे नाराज होके गुस्से से देख रहे हो किसी को, तो कोई वजह भी होनी चाहिए. आप जो है रोटी खा रहे हैं, इंटेंस लुक. आप जो है पानी पी रहे हैं, इंटेंस लुक. आप आराम से टीवी देख रहे हैं, इंटेंस लुक. तो वो ना, यू हैव टू यूज योर expressions etc as an actor wisely, and I feel I don't know where the director was. So Hmm. I'm not sure, did Farouk Rind really direct this? I don't know, because Pyar Ke Sadke is also Farouk Rind. प्यार के सदके was a You know that masterpiece. so many dramas that he has directed that I have loved. So I'm not sure what's going on there. So that Hmm. is a train wreck. And the saddest part is it could have been good. It could have been a contender. मैं देखी नहीं थी, मगर आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात पे बिल्कुल Oh, भरोसा I करूंगी। had to see the beginning because बड़ा शोर मचा हुआ था. हम्म। And of course एंड it's got, अपेरेंटली कुछ रेटिंग्स लेके तो आया है, ऐसा नहीं है, which लेकिन is ये कि this is what is heartbreaking to me, right? You've got great dramas like Hijr, you got fantastic dramas like Behroopiya. I mean, like Behroopiya is top notch, टॉप right? नॉच, टॉप नॉच, टॉप नॉच, बट And yet this thing is getting ratings, और फिर आपका दिल बड़ा टूटता है. अभी तो But दानिश तैमूर वाला आने देना, दानिश तैमूर वाला तो आएगा तो फिर वो क्या टॉक्सिसिटी उन पे, तो उनकी मोहतरमा ने कहा है, सारा खान ने, कोई कोट है उनका कि इट इज नो मॉरल लेसन्स, इट इज जस्ट प्योर एंटरटेनमेंट एंड यू नो वेयर इट गोइंग टू गो फ्रॉम देयर। आपको look, पता I है। don't mind. हम अभी नहीं कह रहे थे कि राजा रानी makes absolutely no sense. Neither does जुड़वा. लेकिन हम्म। हम लोग मजे के लिए देख रहे हैं कि चलो एक नहीं स्टोरी सदफ, है. वो अलग चीज है, नहीं नहीं ये बात नहीं है, वो अलग लेकिन चीज है। इट इज नहीं नॉट नहीं सदफ, देखें इसने टॉक्सिसिटी. ये बोल रही है कि मॉरल लेसन नहीं है, देखें जुड़वा में भी मॉरल लेसन है उसके, वो एक ईवल पप्पो है जो झूठ बोलती है, तो आप कहते हो कि भाई झूठ आपकी जनरेशन तबाह करता है। राजा रानी में वो मैनिपुलेटिव अंकल आंटी हैं, तो अब राजा रानी में भी कोई मैसेज तो है, ये कह रही है कोई मॉरल लेसन नहीं है, प्योर एंटरटेनमेंट है, यानी कोई गलत आदमी सही काम करे, गलत आदमी गलत काम करेगा उसको ग्लोरीफाई किया जाएगा, एंड वी आर सपोज टू से कि नहीं नहीं ये एंटरटेनमेंट है। हाँ, ये अल्लाह बहुत रहे। अच्छा. हाँ, हम तालियां देर बजाएं। लुकिंग कूल, देर लुकिंग कूल. सारी बात ये है ना. ये अब देखें क्या होता है, पता नहीं, मैं तो अल्लाह रहमी करे। एंड एक तो मुझे ये बिल्कुल नहीं, आई डेंट लाइक द होल रामलीला रेफरेंस टू दैट। आई थिंक दैट पाकिस्तान हैज सो मच मोर अदर स्टफ टू ऑफर, व्हाई डू वी नीड टू कॉपी बॉलीवुड एंड एवरीथिंग? आई डोंट थिंक वी नीड टू डू दैट। and that is also two different genres. देखो, वो फिल्म है, हम्म। एंड रामलीला वाज फिल्म, एंड या वो उनके कल्चर, उनकी जो कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक उन्होंने उसके बनाई हिसाब थी. से, वो उनका कल्चरल राइट. ट्रेडिशन के हिसाब से उन्होंने वो एक, इन द फेस्टिवल ऑफ कलर्स उनके बीच में वो जो दोनों होते हैं, आई थिंक इट्स दैट सेज सो मच। एंड जस्ट ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू रैप अप जस्ट टू से दैट now that we know that Bollywood is a hopefully closed chapter for us all, I think we need to all accept one thing, and that is that आपके अपने कल्चर में आपके अपने मोटिव्स मौजूद हैं जिनको देख के आप और बहुत सारी बड़ी चीजें बना सकते हैं। वी नीड टू स्टॉप लुकिंग एट दैट फ्रॉम दैट स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स, के अगर वहां पे कोई चीज चल रही है तो लाजमी यहाँ पे सही चलेगी, यहाँ पे तभी चलेगी जब वैसी होगी, जरूरी नहीं है क्योंकि आपके कंटेंट ने वहां जो बिजीनेस. धूम मचाई है। ऐसा होता तो फिर आपका कंटेंट सबसे घटिया तरीन वाला कंटेंट वहां पे ट्रेंड करता, वो भी हम्म. हुआ है, लेकिन आपका वो बिल्कुल जैसे इश्क मुर्शिद जो था, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही खास पाकिस्तानी तरीके से शूट हुआ हुआ था, खास पाकिस्तानी लेंस, जो पाकिस्तानी ड्रामे का लेंस है, सिंपल टू शॉट लेंस था, ओवर एक्सपोजर ऑफ फेसेस एंड लाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो जो चीज थी वो आपके आपके ड्रामों का स्टाइल था ना। तो जब आपने परिजाद, परिजाद इज अ क्विंटेसेंशियल पाकिस्तानी ड्रामा। हम सफर की बात कर लेते हैं अगर और पीछे जाएं तो मेरे कहने का मकसद ये, और मुझे एक बहुत अंडररेटेड ड्रामा जो Z5 ने उठाया था, वो एक झूठी लव स्टोरी था।
वो बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत खूबसूरत ड्रामा था, लेकिन लोगों ने चुड़ैल्स के ऊपर ज्यादा हाइप किया, या अब अब्दुल्लापुर का देवदास खैर मैंने देखा नहीं, बट उसके ऊपर ज्यादा हाइप हो रहा था, मुझे लगता है। It's good. There was some stuff. Look, Abdullahpur ka Devdas, quick word. हम्म। Raza Talish was so annoying, and maybe he was meant to be हम्म। so annoying. हम्म। Otherwise, that was a good story. In a हम्म। way, kind of like a cosmic joke. But I've heard a lot of good things about it. I've heard a lot, and I do plan to watch it if now, if wherever it's available. But I'm just saying that when it comes to our palette and our stories, I think it's about time that I think the world and world events have now pushed us into this. They have kind of forced us to look inward, and I think it's time to look inward. Anyway, Sadaf, is there anything else you'd like to add before we say goodbye and thank you to our audiences? peace is always better. Okay, that's all. Better than any kind of conflict. Guys, don't forget to like, comment, share, subscribe. Come back for more reviews. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सदफ के लिंक्स को फॉलो कीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे। अपने जान हाथ माल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइए। खुदा हाफिज। That is.